Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed communism, secularism, and democracy. The two major developments around 1986 became central to the politics of BJP as a Hindutva party. The first was the Shah Bano case, and the second was the Ayodhya dispute. Ayodhya issue was started with the demolition of Babri Masjid in Ayodhya in December 1992. In December 1992, the organization supporting the construction of temple had organized a car seva. Thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6 December 1992 and demolished the mosque. This news led to the clashes between Hindu and Muslim in many parts of the country. And then anti-Muslim riots in Gujarat. The anti-Muslim riots took place in the form of violence against Muslims through an incident at a station called Godhra 2002 when a bogie full of car sevaks was set up on fires and suspected the hand of the Muslim in it. फिर उसके बाद जब अयोध्या डिस्प्यूट हुआ, फर्स्ट जो था बीजेपी को एक हिंदुत्व पार्टी शो करने सबसे पहले तो शाह बानो केस था, देन द अयोध्या डिस्प्यूट था. उसके बाद जो है एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात में एंटी मुस्लिम राइट्स हुआ. उसमें जो था जो कार सेवक्स थे उन पे जो है कार सेवक्स जो था उनको सेट ऑन फायर्स कर दिया गया और सस्पेक्टेड उसमें किसको माना गया, दैट वाज द ये कहा गया कि हैंड ऑफ मुस्लिम्स इन इट. द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज गुजरात गवर्नमेंट रोल इन फेलिंग्स टू कंट्रोल violence and show the government machinery also became susceptible to passion and alert us to dangers involved in using rallies sentiments for political purpose. This poses a threat to democratic politics. उसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था उसने गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करा. उन्होंने ये कहा कि ये इस सिचुएशंस को हैंडल करने में ये गवर्नमेंट जो है फेल हुई है और इससे क्या हुआ, ये एक थ्रेट था. थ्रेट किसको था, थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था. देन नेक्स्ट इज द एमरजेंस ऑफ अ न्यू consensus. The period after 1989 is seen sometimes as a period of decline of Congress and the rise of BJP. इसमें जो है मेन जो था आफ्टर 1986 से जो था डिफीट ऑफ द कांग्रेस था. कांग्रेस का जो था डिफीट था और पीरियड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस का पहले जो था डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस था, ओनली वन पार्टी डोमिनेंस थी. उसके बाद इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और किसका राइज हुआ, राइज ऑफ द बीजेपी. एंड लोकसभा इलेक्शन 2004, in Lok Sabha election 2004 the Congress party too entered into a coalition in a big way. The NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress known as the United Progressive Alliance came to power. UPA जिसको हम बोलते हैं, that United Progressive Alliance came to power. This government received support from the left front parties. उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शन हुए 2004 में उसमें सारी सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई और उसमें जो था कांग्रेस एनडीए जो थी उसको जो सपोर्ट नहीं मिली और वो डिफीट हुआ. और उसके बाद जो कांग्रेस थी उसने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई और उसको मिलकर उन्होंने उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जो नाम दिया यूपीए और दैट केम टू पावर. और इस गवर्नमेंट को जो लेफ्ट फ्रंट पार्टीज थी उनसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो थी वो इस गवर्नमेंट को मिली. इन इलेक्शन ऑफ 2004 देयर वाज ए negligible differences between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its lines. Thus the party system has not changed almost dramatically. उसमें बाद में जो है सारा पार्टी सिस्टम ही चेंज हो गया. कैसे जो है एक जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उसमें एक जो पार्टी से जो होता था वो दूसरी पार्टी चेंज कर लेते थे. डिफेक्शंस का भी इसमें आया और कैसे ड्रामेटिकली कभी एक पार्टी जो है कुछ जो
छोटी पार्टी थी वो कभी यूपीए के साथ शामिल हो रही थी और कभी एनडीए के साथ। The political processes after the 1990s showed the emergence of broadly four group of parties. Parties in the coalitions with Congress, parties in the alliance with BJP, and left front parties and others who were not part of the rest to make political competitions multi-concerned. इसमें जो है 1940 में जो पॉलिटिकल्स में क्या चेंजेस आई उसमें मेन जो थी 4 चेंजेस थे। एक तो कांग्रेस जो है कोलिशंस गवर्नमेंट के साथ मिलीजुली सरकार जो है उसके साथ मिलकर बनी, और सेकंड जो था पार्टीज इन अलायंस विद बीजेपी के साथ भी बहुत सारी पार्टीज़ का गठबंधन हुआ, और इसके अलावा लेफ्ट फ्रंट पार्टीज आई, एंड इसके अलावा जो अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मल्टी पार्टीज़ जो थी वो भी इसमें एस्टेब्लिश हुई। ग्रोइंग कॉन्सेंसस, ए ब्रॉड एग्रीमेंट एमर्ज अमंग द मोस्ट पार्टीज on many crucial issues in the midst of the severe competition and many conflicts, or consensus appear to have emerged among most parties consisting of the 4 main elements: agreement or a new economic policies, second one with the acceptance of political and social claim of backward classes, acceptance of the role of state level parties in the governance of the countries, and emphasis on pragmatic considerations rather than ideological positions and political alliance without ideological agreements. इसमें मोस्टली जो था इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई, और सबसे पहले जो मेन चेंज था वो ये था कि ज़्यादातर जो पार्टी थी वो आइडियोलॉजिकल अपनी कोई आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन थी उसको ना करके उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ जो अलायंस बनाए आपने स्थापित किया था, गठबंधन बनाया था विदाउट द आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट्स। और इसमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस को इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई, और इसके अलावा बहुत सारी मल्टी पार्टीज़ बनी, और जिसमें कि शेड्यूल SC ST दलित इन्होंने भी अपनी पार्टी से एमर्ज की। तो ऐसे जो था ये कॉन्सेंसस जो थे वो चेंज हुए, और सबसे मेन जो चेंजेस था दैट इज़ द कोलिशंस गवर्नमेंट। इन कोलिशन गवर्नमेंट सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ any one party within the coalitions government. In this government is formed on the basis of common minimum program. The main reason behind this arrangement is that no party gets majority on its own in the parliament. इसमें मेन जो था सबसे मेन इसमें ये था कि कोई भी जो है पार्टीज़ जो है वो एक डोमिनेंस नहीं मिल रहा था उसको। कांग्रेस जो पहले वन पार्टी डोमिनेंस था, बाद में कोलिशंस गवर्नमेंट बनी उसमें किसी को भी डोमिनेंस मिल रहा था, और दूसरी पार्टीज मिलकर इसका मेन पर्पस क्या था कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को डोमिनेंस ना मिल सके, और इसलिए ये मिलजुल कर कोलिशंस गवर्नमेंट स्थापित करती थी। कभी वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाती थी दूसरी मल्टी पार्टीज़, और कभी वो जो है जो कांग्रेस के साथ जो है शामिल हो जाते थे। एंड कोलिशन गवर्नमेंट इज आल्सो क्रिएटेड इन द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस such as the wartime or economic crisis. If the coalition collapse, confidence vote is held or a motion of non confidence is taken. इसमें जो है मोस्टली क्या होता है, उसमें कोलिशंस गवर्नमेंट्स जो स्टेबिलिटी नहीं होती, उसमें एक स्टेबिलिटी बनकर नहीं चलती, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है अगर कोई भी जो है कॉन्फिडेंस में नहीं है तो इसमें जो है नॉन कॉन्फिडेंस से उसको जो है एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उसको हटाया जा सकता है। एट द नेशनल लेवल द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। सबसे पहले जो तो कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी थी, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ मोरारजी देसाई, एंड एग्जिस्टेड फ्रॉम 24 March 1977 to 15 July 1979, headed by the Janata Party. This government could not complete its tenure. The first coalition government in India which successfully completed its 5-year term was the NDA government headed by the BJP's leaders Atal Bihari Vajpayee. उसमें जो फर्स्ट टाइम जो कोalition गवर्नमेंट थी कब बनी थी, दैट वाज फर्स्ट टाइम जो कोalition गवर्नमेंट थी वो
मोरारजी देसाई के समय में बनी, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकी। और सबसे पहले जो 5 ईयर जो दिस कोalition गवर्नमेंट ने कंप्लीट किए थे, दैट वाज द हेडेड बाय द बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है सबसे पहले इन्होंने अपना टेन्योर जो था, तो ऐसे जो है पॉलिटिकल में चेंजेस आए। और फिर जो पॉलिटिक्स थी फर्स्ट, देन पॉलिटिक्स में रिलीजन्स को भी इसमें जो है इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। थैंक यू।